Okay, so let's start. So today's class is about identifications of cations and anions present in a salt, right? For example, we are having some salts and today we are going to identify the salts. So this is actually identification of salts. Identification of salts. Today's class is based on identification of salts, right? So we have some cations and some anions that are fixed in our syllabus that we need to discuss in this class. वो फिक्स हैं और वही हमें पढ़ने हैं और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. For example, examiner or anyone around you just give you a sample of salt. For example, anyone give you a sample of salt. This is the sample of salt. These are some crystals of salt given to you, and this is actually unknown, right? This is unknown sample. We don't know what salt is this. This is unknown salt. We don't know, and we even don't have any idea about this. कि यार ये है क्या चीज, ठीक है ना? So we need to identify कि यार ये salt है कैसा और हम इसको identify कैसे कर सकते हैं. So there are some you can say that there are some steps by which we can identify कि ये कौन सा salt हो सकता है. And the very first step number 1 is, बच्चों, you need to dissolve this salt into the water. So first of all, just dissolve the sample in water. Dissolve the salt sample in the water. Dissolve the salt in the water, right? So when you dissolve salt into the water, there may be two different observations, right? There may be two different observations. The first observation, maybe the possibility number 1 is there will be a colorless solution. There may be a colorless solution, and there may be a colored solution, right? There may be a colorless solution or there is a colored solution. These are two possibilities that can happen when you dissolve a salt into the water, right? So you need to understand this when you see this, the observation. So you need to remember this, the periodic table chapter. If you remember there, so you know that periodic table में क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था metals के बारे में, that transition metals form colored compounds. If you remember, और अगर नहीं भी है तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे periodic table को, तो आपको वहां दोबारा दिखा दूंगा मैं बच्चों. that transition metal की chemical property होती है when they form compounds. So उसके जो compounds होते हैं ना transition metal के, they always colored compounds, ठीक है ना? तो अगर colored solution है, so the observation is, you can say that in a salt, transition metal may be present. Transition metal may be present. Yeah, transition metal ion may be present, right? So this is one of the observations that you need to understand when you dissolve any salt into the water. But you need to understand this. If the color of the solution is appear like red or blue or somewhere green, so you can say that there must be a transition metal in this salt. In this salt, there must be a transition metal, right? And if the colorless solution, so you can say that transition metal may be absent, right? So you can say that transition metal ion may be absent. It is not confirmed, so that is why we are using the word may, right, bachcho? Is that clear to all of you? The step number 1. Yes, bachcho, is that clear to all of you? Yes, sir. It's clear. Okay. Now, bachcho, when you dissolve the salt into the water, it will form a solution, right? And now you need to divide the salt solution into you can say that 3 parts or into 3 portions, right? So you need to divide the salt solution into 3 portions, right? Divide salt solution in 3 portions, right? आपने इसको 3 portions में divide कर देना. Why we are dividing the salt solution into 3 portions? Because whenever you want to identify the cation, which is actually the positive ion of salt, ठीक है ना? Salt जब बनता है आपके पास तो positive और negative. This is step 2. No, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि step 2 से पहले हमें क्या करना है, ठीक है ना? For example, आपके पास NaCl है,
right? So this is one of the salts. So we know that NaCl बना कैसे बच्चों, Na positive और chlorine negative की वजह से बना है. So this is cation and this is anion, right? So always there are two ions over there in a salt. One should be positive and one should be negative. So cation and anion. सही है. तो हमने इसको 3 portions में इसलिए divide किया है ताकि हम ये cations और anions identify कर सकें. So step number 2 में बच्चों हमें identify करना है सबसे पहले cation. Step number 2 जो है उसके अंदर बच्चों you need to identify cation present over there. Identification of cation. This is actually identification of cation. You need to identify cation over there. And when you are going to identify cations, actually वहां पर हमें करने होते हैं 2 different reactions. इसलिए यहाँ पर यूज होंगे 2 portions. तो जो आपने 3 portion में उसको कन्वर्ट किया ना, उसमें से 2 portion यहाँ यूज होंगे और 1 portion जो है anion में यूज होगा. ठीक है जी बेटे. सर कैटाइन होता क्या है? कैटाइन और एनाइन. कैटाइन पॉजिटिव आयन होता है. देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, हर एक सॉल्ट जो बनेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनेगा. तो जो पॉजिटिव वाले आयन्स होते हैं उनको आप नाम देते हो कैटाइंस. ठीक है. सो सर इसका मतलब हर मेटल कैटाइन है? जी, हर मेटल का आयन, नॉट मेटल. मेटल तो न्यूट्रल होते हैं ना, तो मेटल जब आयन बनाएगा तो वो कैटाइन होगा. ठीक है. और दूसरा ये कि एक और कैटाइन होता है आपके पास जो कि NH4 पॉजिटिव होता है ना, अमोनियम आयन जो होता है ना, तो वो सिर्फ एक वाहिद ऐसा कैटाइन है जो कि मेटल नहीं है, बाकी सारे ही मेटल बनाते हैं कैटाइंस. ठीक है. यस ठीक है बच्चों. तो मैंने आपको क्या बताया कि कैटाइन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो 2 टेस्ट के थ्रू होती है. इसलिए हमने जो पोर्शन है सॉल्यूशन का उसको 2 पोर्शन हम कैटाइन के टेस्ट में यूज करेंगे और 1 पोर्शन हम एनाइन के टेस्ट में यूज करेंगे. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कैटाइन? सो जस्ट लुक एट ओवर हियर. आई जस्ट वांट टू मेक a table over here so it will be easier to learn for us. So this is actually over here. ये हमारे पास आ गया एक टेबल. इस टेबल के अंदर हमारे पास बच्चों 2 टेस्ट होंगे. ठीक है ना. और यहाँ पर हमारे पास कैटाइंस होंगे. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में वी जस्ट नीड टू यूज कैटाइंस जो कि हमारे सिलेबस में है. हम सिर्फ उन कैटाइंस की बात करेंगे एंड डेफिनेटली आपके पेपर में जो आएंगे वो भी यही होंगे जो हमारे सिलेबस में है. ठीक है ना. वी हैव two tests. We need to use 2 tests to identify cations, right? So that is why we are using 2 portions over here, right? And each one of the tests is actually has 2 portions more, right? So this will be the table that we are going to use to identify cations present in the unknown salt, right? सबसे पहले हम identify करने लगे हैं cations बच्चों. ठीक है ना. So over here we need to identify cation, right? And the first portion of the salt solution is actually tested by aqueous sodium hydroxide, right? First one is going to be identified by aqueous sodium hydroxide, and the second portion is going to test with aqueous ammonia. These are the 2 tests that we need to use for the identification of cations, right बच्चों? And each one of them, मतलब एक टेस्ट जो होगा ना उसी के अंदर एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर first of all we need to add few drops. हम पहले कुछ drops add करेंगे until and unless there will be some observation, and then जब वो observation हमें note हो जाएगी then we will add in the same test tube the excess of this reagent. Sodium hydroxide पहले हम few drops add करेंगे एक test tube में, एक पोर्शन जो हमने लिया उसके अंदर, फिर हम बहुत सारा डाल देंगे. इसी तरह हम इसमें भी पहले few drops लेंगे अमोनिया के and then we add excess ammonia to identify the cations, right? These are the 2 tests. First of all बच्चों, if you remember, so you had a crystals of unknown salt. You just dissolve these crystals in the amount of water, right? You have water और इस वाटर में आपने ये अननोन सॉल्ट को ऐड किया. अननोन सॉल्ट को ऐड करने के बाद आपने इसको डिसॉल्व कर लिया. डिसॉल्व करने के बाद आपने क्या किया है, इस अननोन सैंपल के सॉल्यूशन को, जो कलर्ड हो या जो कलरलेस हो, उसको आपने 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में ले लिया. ठीक है ना. एक टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3. ये 2 टेस्ट ट्यूब्स आप यूज करोगे कैटाइन के टेस्ट के लिए और ये वाली टेस्ट ट्यूब आप यूज करोगे एनाइन के टेस्ट के लिए. कैटाइन के टेस्ट के लिए पहले टेस्ट ट्यूब आप यूज करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरी टेस्ट ट्यूब आप यूज करोगे अमोनिया के साथ.
एंड इन द सेम टेस्ट ट्यूब पहले आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करोगे ताकि कोई डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप चेक करेंगे, और जब डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर आप इसी टेस्ट ट्यूब में एक्सेस डाल दोगे। सेम एज इट इज अमोनिया वाले में भी आप पहले फ्यू ड्रॉप्स डालोगे और फिर आप एक्सेस कर दोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. So for example, I am taking the first test tube, and in the first test tube, I saw that there is a colorless solution. For example, in the first test tube, there is a colorless solution. Test tube number 1. So I add few drops of sodium hydroxide over there until there will be some change, right? So for example, बच्चों, first of all, अगर आपके पास होता है कैल्शियम आयन, अगर आपके पास होता है जिंक आयन, और अगर आपके पास होता है एल्युमिनियम आयन, फॉर एग्जांपल आपको जो अननोन सॉल्ट मिला है उस अननोन सॉल्ट में इफ देयर विल बी कैल्शियम आयन, जिंक आयन एंड एल्युमिनियम आयन, so by the addition of aqueous sodium hydroxide few drops, you will find some white precipitates over there. They all three cations will produce white precipitates over there, right बच्चों? अगर आपके पास जो अननोन सॉल्ट है उसमें कैल्शियम, जिंक या एल्युमिनियम हुआ, अगर उस अननोन सॉल्ट में कैल्शियम, जिंक या एल्युमिनियम हुआ, so it would produce white precipitates by the addition of few drops of sodium hydroxide. Now बच्चों, it is difficult for us to identify कि कैल्शियम होगा या जिंक होगा या एल्युमिनियम होगा, तो हमें तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक। हमने थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, हमें आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि ये कैल्शियम में, एल्युमिनियम में या जिंक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू डू समथिंग मोर ओवर हियर ना। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए, वी फाइंड सम व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ओवर देयर, बट स्टिल इट इज नॉट आइडेंटिफाई कि इसमें कैल्शियम है, एल्युमिनियम है या जिंक है। हमें ये पता चल गया कि हाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए, तो या तो कैल्शियम होगा, या तो जिंक होगा, या तो एल्युमिनियम होगा, बट इनमें से कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सो टू आइडेंटिफाई दिस वन, we need to add excess sodium hydroxide. What we need to do, we need to add excess sodium hydroxide over here. We will add excess sodium hydroxide over here. हम ज्यादा डाल देंगे। जब हम ज्यादा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे बच्चों, so what you will see, अगर वो जो precipitates हैं वो precipitates insoluble रहते हैं, then it is confirmed कि उसमें कैल्शियम है। ये बात कंफर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब में, छोटे छोटे से व्हाइट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद भी वो व्हाइट पार्टिकल्स दे आर स्टे ओवर देयर, राइट, दे आर स्टिल ओवर देयर, दे आर एग्जिस्टिंग ओवर देयर अगेन, और वो गायब नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये कैल्शियम आयन का सॉल्ट है, ठीक है बच्चों। और अगर वो जिंक हुआ या वो एल्युमिनियम हुआ, सो दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व, वो गायब हो जाएंगे, सही है। यस सर। और सर वो थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या हम डालेंगे? थर्ड टेस्ट ट्यूब की भी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं। अभी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमने देखा कि उसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए, हमें इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि यार इसमें या तो कैल्शियम आयन हो सकते हैं, या तो एल्युमिनियम आयन हो सकते हैं, या तो एल्युमिनियम आयन हो सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता चला कि इन तीनों में से कौन सा है, तो हमने एक्सेस डाल दिया। अगर डिसॉल्व हो गए तो कंफर्म है कि उसके अंदर जिंक होगा या एल्युमिनियम होगा, और अगर डिसॉल्व नहीं हुए तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर कैल्शियम आयंस हैं। बट स्टिल अभी हमें, अगर फॉर एग्जांपल वो डिसॉल्व हो जाते तो हमें अभी भी पता नहीं है कि वो जिंक है या एल्युमिनियम है। अगर नहीं डिसॉल्व हुए तो दैट्स फाइन कि वो कैल्शियम है, हमें पता चल गया। लेकिन अगर वो डिसॉल्व नहीं होते, सॉरी डिसॉल्व हो जाते, तो वो कलरलेस सॉल्यूशन दोबारा से हो जाता, तो हम तो अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि उसके अंदर जिंक है या एल्युमिनियम है, तो फिर हम दूसरा टेस्ट करते। तो फॉर सपोज कि यहाँ पर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स थे ये डिसॉल्व हो गए, तो अब ये डिसॉल्व हो गए, तो अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर जिंक आयंस हैं या तो एल्युमिनियम आयंस हैं, बट इन दोनों में से कौन से हैं, दिस इज नॉट आइडेंटिफाई। सो फॉर दिस वी नीड टू टेक द सेकंड टेस्ट ट्यूब। फिर हम सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, और इस टेस्ट ट्यूब में अगेन वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर ओवर देयर, हमारे पास सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन इज ओवर देयर, तो हमारे पास वो सॉल्ट सॉल्यूशन दोबारा से है, एंड देन वी ऐड व्हाट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया ओवर हियर। अब यहाँ पर हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे अमोनिया के, एंड यू विल फाइंड अगेन white precipitates over there, you will find white precipitates again over there. So
when you do the second test of the salt solution, if the precipitates dissolved in sodium hydroxide, तो हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको दोबारा टेस्ट करना है, तो ये अल्मोनियम है या जिंक है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम अमोनिया डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स तो वो दोबारा से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बना देंगे, तो स्टिल इट इज नॉट आइडेंटिफाई कि अल्मोनियम है या जिंक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? जी बेटे। सर आपने कैल्शियम के आगे वो एक्वस अमोनिया में वो डैश क्यों डाली है? तो क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर उसका अमोनिया का टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सर मतलब वो पेपर, सर पेपर में भी उसका नहीं पूछेंगे? पेपर में वो पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है, अमोनिया का टेस्ट जब उसको पता है कि वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों, हम इसमें एक्सेस अमोनिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इसमें एक्सेस अमोनिया ऐड करोगे, सो अगर वो जिंक हुआ, सो इट विल डिसॉल्व इन एक्सेस अमोनिया, और अगर वो अल्मोनियम हुआ, सो इट विल बी इनसॉल्युबल। राइट बच्चों? Yes, बच्चों, can you hear me properly? Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So अगर वो जिंक हुआ तो एक्सेस में क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्युबल हो जाएगा, और अगर वो अल्मोनियम हुआ तो वो एक्सेस में इनसॉल्युबल ही रहेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज प्योरली the table for the calcium, zinc and aluminum ions. So if you learn this table, so you can easily identify the presence of calcium, zinc and aluminum in the salt. तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि आपने अगर आइडेंटिफाई करना है कैटाइन को, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से अगर ये तीन कैटाइंस वहां मौजूद हुए, यानी कि अगर वो सॉल्ट कैल्शियम का हुआ या वो जिंक का हुआ या अल्मोनियम का हुआ, तो दे मस्ट फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। ठीक है ना? और फिर हमें फर्दर आइडेंटिफाई करना है कैल्शियम है, जिंक है या अल्मोनियम है, तो हम उसमें एक्सेस डाल देंगे। एक्सेस डालने से इफ द प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल, तो हमें दोबारा कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इट इज कंफर्म कि वो कैल्शियम आयन है। लेकिन अगर वो डिसॉल्व्ड हो गए, इफ द precipitates are soluble in the excess sodium hydroxide, तो बच्चों हमें क्या करना होगा? फिर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आपके पास जिंक है या एल्युमिनियम है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वी नीड टू टेस्ट अमोनिया, राइट? अमोनिया के थ्रू हमें अमोनिया टेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें जिंक है या ammonium, right? So what we need to do in the next test tube, we just add few drops of ammonia again, and they will again produce white precipitates, both of them zinc and aluminum. और फिर भी हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर हम एक्सेस डाल देंगे। जब हम एक्सेस डालेंगे तो we will see that अगर वो जिंक हुआ so it will dissolve in excess, और अगर एल्युमिनियम हुआ so it will remain undissolved। वहां पर जो precipitates हैं, पीपीटी जो हैं, वो dissolve नहीं होंगे। Is that clear to all of you? सो सर हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स में ही आइडेंटिफाई हो गया, तो हमें थर्ड टेस्ट ट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, थर्ड टेस्ट ट्यूब पे तो आप सब में जाएंगे क्योंकि वो एनाइन का टेस्ट है, क्योंकि आपको एनाइन भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। कैटाइन तो पता चल गया, सॉल्ट पता करने के लिए आपको एनाइन भी तो पता होना चाहिए ना। यस, ओके सर। सर सिर्फ तो ये ये 3 कैटाइन होते हैं? ये कलरलेस वाले 3 होते हैं, उसके अलावा हमारे पास होते हैं कलर्ड वाले भी। तो जो कलर्ड वाले होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? कलर्ड वाले में हमारे पास है बच्चों आयरन 2+ और क्रोमियम 3+, राइट? उसके अलावा हमारे पास है आयरन 3+, और उसके अलावा हमारे पास है copper 2+. So these ions are present in our syllabus. So अगर आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन आता है, तो फिर आप जो है दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो अगर आपके पास आयरन 2+ हुआ या क्रोमियम 3+ हुआ, so they will produce what? They will produce green precipitates. ये बनाते हैं green precipitates. Both of them will produce green precipitates, right? And if you add excess sodium hydroxide, तो अगर आयरन हुआ so it will be insoluble, और अगर आपके पास क्रोमियम हुआ so it will be dissolve in excess sodium hydroxide। ठीक है बच्चों? तो अब देखें, ये तो पहले ही टेस्ट में आइडेंटिफाई हो गया कि ग्रीन प्रेसिपिटेट्स तो सिर्फ 2 के ही हैं, और 2 में से भी अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्रोमियम डिसॉल्व हो गया,
तो ये तो पहले ही टेस्ट में आइडेंटिफाई हो गया, तो हमें दूसरा टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एग्जाम में क्या करता है, वो एग्जामिनर जो है ना पहला अमोनिया वाला टेस्ट दे देता है, ठीक है ना। तो अमोनिया वाला टेस्ट दोनों का सेम है, दोनों ही ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और दोनों ही एक्सेस अमोनिया में इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले वो आपको ये वाला टेस्ट देगा जिससे आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि क्रोमियम है या आयरन 2+ है, ठीक है ना। फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिख के देगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जो सॉल्युबल हो गया, जिसके प्रेसिपिटेट्स गायब हो गए, वो क्रोमियम है, और जिसके प्रेसिपिटेट्स गायब नहीं हुए वो आपके पास आयरन 2+ है, ठीक है। एंड देन आयरन वाला तो बहुत आसान है, आयरन 3+ वाला, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आएंगे, ठीक सर है ना। क्वेश्चन था जी बेटे। सर, ये आयरन और क्रोमियम के अंदर में एक्वस अमोनिया टेस्ट का फायदा क्या हुआ फिर? जी वही बता रहा हूँ आपको कि एक्वस अमोनिया एग्जामिनर आपको पहले लिख के देगा, ठीक है ना। वो आपसे पहले एक्वस अमोनिया वाला टेस्ट कराएगा ताकि आपको जो है ना ये पता हो कि एक्वस अमोनिया में दोनों ही इनसॉल्युबल रहेंगे एक्सेस में, ठीक है ना। फिर वो आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड टेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएगा। ओके ओके। ठीक है। आयरन 3+ इज यस वेरी सर। इजी। अगर आयरन 3+ आपके पास होगा बच्चों, तो आयरन 3+ दोनों ही में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और दोनों में ही एक्सेस में इनसॉल्युबल रहेगा। तो अगर आपके फाइनल पेपर में आयरन 3+ आ जाता है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, और ये आप समझ लें कि आपका बेस्ट ऑफ लक होगा कि आपको ये मिल जाएगा माशाल्लाह से, बहुत इजी वाला। मतलब रेडिश ब्राउन बने, दोनों में इनसॉल्युबल, दोनों में रेडिश ब्राउन, तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। और कॉपर वाला भी बिल्कुल सिंपल है, कॉपर में दोनों में ही लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो इसमें भी आपको कोई दोनों में ही लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही अलग डिफरेंट कलर है, मतलब ग्रीन के 2 हैं, वाइट के 3 हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है, बट रेडिश ब्राउन और लाइट ब्लू वाले सिर्फ एक एक ही हैं, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी। आपने देखा लाइट ब्राउन लाइट ब्लू है, आपने बोला ये तो कॉपर ही है, वैसे ही पता चल गया आपको ना। आपने देखा रेडिश ब्राउन है, आपको वैसे ही पता चल गया ये आयरन 3+ है, ठीक है। और अगर आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये जो कॉपर वाला है इट विल रिमेन इनसॉल्युबल, राइट। बट जब आप अमोनिया में डालते हैं तो इट विल डिसॉल्व, सॉल्युबल हो जाएगा, और एंड गिव डार्क ब्लू सॉल्यूशन, एंड गिव डार्क ब्लू सॉल्यूशन। बहुत खूबसूरत डार्क ब्लू सॉल्यूशन आपके पास आएगा जब आप एक्सेस अमोनिया ऐड करोगे कॉपर के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सर एक बस नोट डाउन कर रहा हूँ। जी। और बच्चों एक छोटी सी बस एक और आपके पास टेस्ट है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। एक छोटा सा टेस्ट और है, और वो आपके पास है किसका? वो टेस्ट है आपके पास अमोनियम आयन का, ठीक है ना। इसका टेस्ट है आपके पास अमोनियम आयन का टेस्ट है NH4+1 का। ये वाला जो टेस्ट है ये बहुत सिंपल है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल एक ही टेस्ट करना है। आप क्या करेंगे? ऐड aqueous sodium hydroxide। इसमें आप क्या करेंगे? ऐड aqueous sodium hydroxide and warm gently। आप इसको हल्का सा वार्म करेंगे, so you will see that यहाँ से गैस evolve होगी। so गैस evolve होगी, this will be the observation, gas evolve that turns red litmus blue। एक आपके पास गैस जो है evolve होगी that can turn रेड लिटमस पेपर ब्लू, और ये वाली जो गैस होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस है जिसका नाम है अमोनिया। देयर इज द ओनली वन गैस व्हिच इज बेसिक इन आवर नेचर, और यू कैन से दैट इन आवर सिलेबस, राइट। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही गैस है जो कि बेसिक है नेचर में, ठीक है ना, मतलब कि अल्कलाइन है, और वो रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू कर सकती है। तो ये जो गैस निकल रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ हीट करने पर वो अमोनिया गैस होगी, राइट बच्चों। So this is very simple test, सर इसके लिए 2 टेस्ट की जरूरत नहीं है, एक सर ही में हो ये जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक्सेस डालना है या फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं नहीं, अमोनिया के इसमें लिए? आप इसमें थोड़ा सा आप डाल दें, यानी फॉर एग्जांपल ना तो फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर और ना ही एक्सेस डलेगा। आप इसके अंदर फ्यू ml डाल दें, फ्यू सेंटीमीटर क्यूब्स डाल दें, क्योंकि ये एक ही टेस्ट है, ये 2 टेस्ट नहीं ओके सर, आपने लिखा हो क्या ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या लिखा है? है। वार्म जेंटली, थोड़ा सा आप इसको हीट कर लें। इज दैट ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू?
Yes, बच्चों, is that clear to all of you? Yes, सर sir. क्या आप ये Yes, sir. रिपीट कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई। क्या कौन सी वाली बात बताएं? अच्छा, ये NH3 वाली टेस्ट की। जी, अमोनिया माइन है, ये अमोनिया माइन है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि आपके सॉल्ट में NH4 है या नहीं, तो उसके लिए दो टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें और उसको थोड़ा सा हीट करें। एक्चुअली हमारे सिलेबस में एसिड और बेस में हम पढ़ेंगे कि NH4 सॉल्ट्स जो होते हैं ना, जो भी सॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर NH4 होता है, जब आप उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो दे विल फॉर्म व्हाट? सॉल्ट, अमोनिया एंड वाटर। यू विल लर्न दिस इन योर चैप्टर एसिड एंड बेस, राइट? तो जब आप ये पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर अमोनिया गैस निकल रही है, एंड दिस इज द ओनली एल्कलाइन गैस इन अवर सिलेबस। बाकी सारी एसिडिक है। तो जो एल्कलाइन होती है तो डेफिनेटली वो रेड को ब्लू कन्वर्ट कर सकती है लिटमस पेपर को ना। तो इफ यू टेक डैम रेड लिटमस, तो क्योंकि ये एल्कलाइन गैस है तो इट विल टर्न रेड टू ब्लू, लिटमस पेपर को ब्लू कर दी। ठीक है सर इतना सारा याद कैसे रखेंगे? बेटे, ये पेपर 4 में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको याद करना पड़ेगा। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-4 ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। अभी मैं 2-4 आपको करा दूंगा डायरेक्टली, और उसके बाद आपके पास टॉपिकल पास पेपर्स होंगे, उसमें आप 2-4-5 क्वेश्चन करोगे, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। ये बहुत बहुत आसानी से याद हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, राइट? ओके सर। Then, bacho, if you remember, so we distribute the solution into 3 portions, and we did first portion as well with the sodium hydroxide, and the second portion with the ammonia, and hopefully we identify the cation. अब जो भी होगा वो cation हमें identify हो जाएगा। जो भी इन सारे rules को follow कर रहा होगा, इनमें से कोई भी एक correct जो होगा वो identify हो जाएगा। Then we need to identify the anion as well over there present, कौन सा anion है ताकि हम salt बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि वहां पर अल्मोनियम आइन था, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर जो आपका जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है, इससे अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि क्लोराइड आइन था वहां पर, देन यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई व्हाट द सॉल्ट वाज, जो कि इनिशियली आपके पास अननोन था। तो आपको सॉल्ट भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि यार ये शायद अल्मोनियम क्लोराइड था। ठीक है ना? तो इसलिए हमें एनाइन को भी फाइंड आउट करना जरूरी है, और एनाइन के टेस्ट और ऑब्जर्वेशन हमारे पास सिलेबस में कुछ ऐसे हैं। उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही टेस्ट है, मतलब एक टेस्ट आप करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सो हमारे पास कुछ एनाइंस हैं हमारे सिलेबस में जो कि हमें टेस्ट करना सीखने हैं, एनाइंस, राइट? और उनका टेस्ट और ऑब्जर्वेशन आपको याद करनी है। सो ओवर हियर, फॉर एग्जांपल, दिस इज द एनाइन जो कि हमें याद करने हैं, दिस इज द टेस्ट फॉर देम, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इसमें से वो कोई भी एक पोर्शन आपको दे देगा, बाकी 2 पोर्शन आपने बच्चों खुद कंप्लीट करने होंगे। सो टेस्ट फॉर एनाइंस, test for anions. If you want to find out anions, so which anion is there, test for that anion and the observation of that test, right? So हमारे सिलेबस में सबसे पहले बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये 3 आपके पास आप कह लें कि हैलाइड आइंस है। हैलाइड आइंस मतलब ग्रुप 7 वाले आइंस, ये हैलाइड आइंस है। इन तीनों का टेस्ट सेम है, तीनों का एक ही टेस्ट है, और मैं एक ही बार लिख रहा हूँ। ठीक है ना? आपने क्या करना है, एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड, एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आपने क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। इसका भी यही टेस्ट है, इसका भी यही टेस्ट है, सेम टेस्ट है। if the white precipitates forms, then it is confirmed that you have fluoride in the salt. If cream precipitates form, then it is confirmed you have bromide over there. And if yellow precipitates form, so it is confirmed that you have iodide ion over there. सर Then HNO3 क्या होता है? HNO3 acid होता है, नाइट्रिक एसिड। सर उसको इसका नाइट्रिक एसिड, नेम नाइट्रिक एसिड है? जी, नाइट्रिक एसिड, HNO3 is नाइट्रिक एसिड, right? And this is silver nitrate. So you need to remember this कि अगर ये वाले 3 आपने आइडेंटिफाई करने हैं तो आपने सिल्वर नाइट्रेट यूज करना है। और कहीं पर भी सिल्वर नाइट्रेट का लफ्ज याद अगर आपको नजर आ जाए तो आप समझ लें कि ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का। Then we have sulfate as well in our syllabus, sulfate 2-, and for this you need to use barium sulfate or barium
barium nitrate or barium chloride, right? So acidify again with the same acid, acidify with nitric acid, and then add barium chloride. आप barium chloride add कर सकते हैं और barium का nitrate भी add कर सकते हैं, any barium salt, right? So it will produce again white precipitates. अगर white precipitates बनते हैं तो it's confirmed that it is a sulfate ion over there. Then we have carbonate as well in our syllabus. So carbonate test very simple. You just need to add dilute hydrochloric acid over there, right? When you add dilute hydrochloric acid over there, you will see that a gas evolve. आपके पास एक gas evolve होगी that turns lime water milky. That turns lime water milky. और lime water को milky करती है carbon dioxide gas. इसका मतलब ये है कि यहाँ से carbon dioxide gas evolve हो रही है, right? So this is the observation of carbonate. And then we have nitrate as well. Nitrate का test क्या होता है? You need to add aqueous sodium hydroxide there plus aluminum foil, and again heat gently. And the observation will be same as ammonium will give you a gas evolve that turn damp red litmus blue. Again, this is the only alkaline gas in our syllabus, which is ammonia. So यहाँ पर भी ammonia gas release हो रही है. So these are the tests for anions in our syllabus. So by these tests, we can identify the anion present over there in the salt, and cations also can be identified by these salts. So overall, we have these few tests जो कि हमें याद करने होंगे हमारे syllabus में. जब ये हमें याद हो जाएंगे तो हम कोई सा भी आपके पास salt identify कर सकते हैं. Just give me a minute. Let me find some questions for you. एक question कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं solve. Okay, over here. Just look at over here, बच्चों. What the question is saying to you? The question is saying that Am is a compound which contains 2 ions, right? ये कह रहा है Am is a compound which has 2 ions, right? Compound means it is salt as well. Complete the table by adding the observation in test A, conclusion in test B and C, both the test and observation in test D, right? First of all, you can see this, what we are doing over here. M is, which is unknown, we dissolve in water, right? And divide this portion into 3 parts, right? B, C and D, right? And what they are saying in the conclusion, they are saying M is not a compound of transition metal. So what should be the observation जिसके ऊपर हम ये conclusion निकाल रहे हैं कि यहाँ पर transition metal नहीं है? Observation क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सर colorless. Yes, so you need to remember this. आपने जब इसको पानी में dissolve किया है तो colorless solution आया होगा जब भी आप ये यहाँ लिख रहे हैं कि ये transition metal नहीं होगा. Is that clear बच्चों? Yes. Then we divide this solution into 3 parts. This is the part 1, part 2 and part 3, right? These two parts are for cation, right? And this is for anion, right? So you can see this in the first part, they are adding few drops of sodium hydroxide until the change seen, and they are saying white precipitates forms. And we know that अगर white precipitates form हो रहे हैं sodium hydroxide डालने के बाद, so there may be calcium ion, there may be aluminum ion or zinc ion present, right बच्चों? Yes, sir. There may be these 3 ions present. Maybe you can write maybe as well over here. Calcium ion, aluminum ion or zinc ion may be present, right? We are not confirmed about the ion over here. Then they are saying the precipitate dissolve. We know that Sir, either aluminium or zinc. Yeah, so you can say that aluminum or zinc may present. इन दोनों में से आप कोई present हो सकता है क्योंकि जो आपके पास white precipitates थे वो dissolve हो गए, right? Then अभी confirm नहीं है aluminum या zinc है, so we need to do the second test as well, which is related to the ammonia, right? So we add ammonia again and they shows the white precipitates again. So it's clear that a zinc ion or aluminum ion may present, right? They may be present over there. Then we are not identified right now, so we add excess ammonia over there and we see that
still the precipitates are insoluble. So it's confirmed that over here aluminum ion is present, right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Aluminum ion is present. Ammonium ion is present over here, and they are saying that chloride ion का आपने test लिखना है anion में. So it's very simple. We know that acidify with nitric acid. We need to acidify the solution with nitric acid and then add silver nitrate. When we add silver nitrate, the chloride is present over there, so must be white precipitates will form, right, bacho? And what will be the compound M? We know that aluminum is 3 plus and chloride is 1 minus. So the formula between these two ions is aluminum chloride. So this is compound M. Is that right, bacho? Yes, sir. This is actually what we are doing over here. Is that clear to every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's solve one more question. Let's solve one more question. So over here in question number 3, जो हमें पता है सिर्फ हम वो सॉल्व करेंगे, अभी उसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है बस उसकी बात करेंगे. Right, so you can see over here बच्चों that in the start they are saying two substances solution M and solution solid N were analyzed. Solution M was aqueous iron 3 chloride. Tests were done on the substances, right? Complete the expected observation. Describe the appearance of solution M. Now you can see this solution M. Solution M is actually the salt of what, bacho? Iron 3 chloride. It is the salt of iron 3 chloride. So what should be the color of this solution? This should be the color of, yes, that's very good. So it should be the reddish brown solution. Perfect. Anjala, आपकी आवाज में पहचान गया, देख रहे हैं 3 साल से आप मेरे साथ हैं. Then solution M was divided into 3 equal portions in 3 test tubes. Dilute nitric acid and aqueous silver nitrate were added to the first portion of solution M. Observation. Yes, you can see this, बच्चों. This is the solution M. और इस solution M में कौन सा anion White precipitate. है? Yes, this is chloride. So when you test chloride with silver nitrate, so it must show white precipitates. Well done, Saad. Then dilute nitric acid and aqueous barium nitrate were added to the second portion of solution M. Observation. Now you can see this. They are saying nitric acid and barium nitrate. We know that barium is always used to identify sulfates, right? It is always used to identify sulfate, and we don't have sulfate over here. We have chloride over here. जब sulfate है ही नहीं, so there will be no observation. Is that right? Yes, sir. Then what they are saying in part D, they are saying drops of aqueous sodium hydroxide were added to the third portion of solution M until a change was seen. Yes, क्या observation आनी चाहिए? We have iron 3 Sir, over green there. precipitate. Iron 3 over there, not +2. It is 3. It will Sir, be red precipitate. reddish brown precipitates. Very good. They will be reddish brown precipitates, and we add excess sodium hydroxide, so definitely they will be insoluble in excess, right? They will be insoluble in excess. Is that right? Yes, sir. Then in the next part, they are saying that some of the tests and observation are shown. The appearance of solid N. Now this is the work on solid N. So they are saying that it is a green powder. We don't did this right now. So अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ. Solid N was heated. The gas produced that turns black lime water turns milky. That turns black lime water milky. तो ये कौन सी gas होगी? Definitely the gas which turns lime water milky. It should be carbon dioxide gas, right? A flame test was done, and we know that अभी हमने flame test नहीं किया है, तो हम इसको solve नहीं कर सकते. फिर भी green ब्लू जो आपके पास कलर होता है वो कॉपर के आयंस का होता है, राइट? हमने अभी नहीं किया, तो हम इसकी इसमें बात नहीं कर रहे हैं. तो ये सॉल्ट हो गया कॉपर कार्बोनेट, बट स्टिल वी डोंट डू दिस राइट नाउ बिकॉज़ हमने उसके टेस्ट पढ़े ही नहीं है.